हम लोग थोरली रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। आज एक नए तरीके से आप लोगों को मीनिंग समझाऊंगा, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल अनवारंटेड अरेस्ट। द कैजुअल रिजोर्ट बाय द पुलिस टू द सेडिशन क्लॉज कंटिन्यूज टू कॉज कंसर्न। और एक बात जो मैंने मार्क किया है, आप सब देख रहे हैं ये लोग, उनका मैं वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स जो पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि द हिंदू जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका कंपिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है ये, क्योंकि इसमें से आपका करंट अफेयर्स भी रिवीजन होते रहेगा। वोकैब सेक्शन मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स जो पूछा जाता है वो भी आपका रिवीजन होते रहेगा। और स्पीकिंग के लिए कुछ कुछ बहुत सारे वर्ड मीनिंग चाहिए, तो वो भी आपका स्टोर होते रहेगा, बनते रहेगा बैंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The arrest of K. Raghu Ramakrishna Raju, an MP from Andhra Pradesh, on the grave charge of sedition is yet another instance of the misuse of the provision relating to exciting disaffection against the government. The police in different states have been invoking sedition, an offence defined in section 124 IPC, इंडियन पिनल कोड होता है IPC, अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड प्रोमिनेंट डिसेंटर्स। It is not surprising that Mr. Raju, a vocal detractor of Andhra Pradesh, AP, Andhra Pradesh, Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy। तो आप लोगों को एक करंट अफेयर मालूम चला कि अभी फ़िलहाल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि क्या बोलता हूँ, गवर्नर और CM से क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है। इट्स आउट टू बी प्रोसिक्यूटेड, हाउएवर हिज अरेस्ट is unwarranted considering that he is being accused of only speech-based offences relating to his diatribe against his party leader and CM. It has predictably and now without justification invited charge of political vendetta. Even if one were to accept at face value the prosecution claim that his speeches stoked hatred against communities he had referred to alleged rampant conversation activity in the state and attracted prosecution under section 153A or section 505, was his arrest necessary. These offences attract a prison term of only 3 years, and under the Ernest Kumar ruling 2014 of the Supreme Court, there is no need to arrest a person for an offence that invite a prison term of 7 years and less. Further, even sedition, which allow a maximum sentence of life imprisonment, also prescribe an alternative jail term of 3 years. Mr. Raju has alleged ill treatment while in CID custody. The Supreme Court has directed that he be examined at the Army Hospital in Sikandrabad in neighboring Telangana. His bail petition is likely to be taken up last this week. It is edifying to note that the CID has also named in the FIR 2 television channel 2 which he gave interviews. While his legal process will take its course, it is once again time for a reflection on the need and relevance of the offence of sedition, a colonial era provision used to imprison people for political writing in support of Indian independence. To remain on the statute book, that state governments and various police departments are known for the casual resort to prosecution under this section is a poor reflection of
the understanding of the law among civil servants everywhere. It is now fairly well known that the section is attracted only if there is a imminent threat to public order or there is actual incitement to violence, ingredients that are invariably absent in most cases. In addition, it remains vaguely and too broadly defined. The term disaffection is said to include disloyalty and feeling of enmity, warranting a total reconsideration. Recently, the Supreme Court decided to revisit the constituency of this section. While a judicial verdict will be welcome, it would be even more protective of free speech if center abolish the provision. ये तो हम लोगों ने थोरली रीडिंग किया. आप लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, क्योंकि जो हिंदी मीडियम होते हैं चलो हम लोग रीडिंग कर लिया. आप लोग पहले इसको 2-3 बार पढ़िएगा, अब इसका मीनिंग समझते हैं, वो भी एक डिफरेंट तरीके से. अब पहले तो मैं पढ़ाते वक्त ही बता देता था, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं. यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ उसी तरीके से पढ़ाए या फिर पढ़ाते पढ़ाते जो समझाता था वैसे पढ़ाया जाए. तो चलिए अब मीनिंग की तरफ चलते हैं इस पूरे ट्यूटोरियल. उसके बाद फिर चलेंगे जो वर्ड जो हार्ड वर्ड है उसका सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग देंगे. तरीका से पढ़ते हैं. अनवांटेड अरेस्ट, उसका क्या था, उसका डेफिनेशन. द कैजुअल रिजॉर्ट बाय द पुलिस टू द सेडेशन क्लॉज कंटिन्यूज द क्लॉज ऑफ. पुलिस द्वारा आकस्मिक, मतलब ये जो कैजुअल होता है आकस्मिक, सहारा देशद्रोह मतलब सेडिशन की धारा चिंता के विषय बनाई गई है. क्लॉज, सेडिशन क्लॉज मतलब देशद्रोह की धारा. द अरेस्ट ऑफ के रघुरामकृष्ण राजू एन MP फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन इज yet another instance of the misuse of provision relating to exciting disaffection against the government. स्पीड में मैंने पढ़ा क्योंकि इसका मीनिंग आप लोग तो पहले रीडिंग कर चुके हैं, उसके बाद फिर आप बता के देखिएगा. राजद्रोह के गंभीर आरोप में आंध्र प्रदेश के एक सांसद रघुरामकृष्ण की गिरफ्तारी हुई. सरकार के खिलाफ रोमांचक अस्वीकृति से संविधान प्रधान के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है ये. The police in indifferent state have been invoking sedition, an offence defined in section 124 IPC against critics of the establishment of the prominent dissenters. उनकी 124 का धारा लगाया गया है क्योंकि उन्होंने आलोचना की है पुलिस स्थापना के. विभिन्न राज्यों में पुलिस स्थापना के आलोचकों प्रमुख असंतोष के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा रही है जो 124A के IPC में परिभाषित है. मतलब जहाँ सब पूरे देश भर में जो बोल रहे हैं उनके ऊपर 124A के धारा के लिए लगा रही है सब कोई. फिर हुआ इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मिस्टर राजू वोकल डिट्रैक्टर मतलब क्या देखिए ये हुआ बात की एक जगह मुकदमे कि वो वोकल डायरेक्टर है, मतलब क्या बोलते हैं बोलने वाले हैं. डायरेक्टर मतलब होता है आलोचक, होता है आलोचक है. चीफ वाइस मिनिस्टर साउथ बी प्रोसिक्यूटेड, उन्होंने मुकदमा चलाने की मांग की है. वाइस जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने मांग की है, साउथ की है, मांग चलाने की मांग की है. हाउएवर हिज अरेस्ट अनवारंटेड, मतलब उनका जो अरेस्ट अनवारंटेड है वो अनुचित है. कंसिडरिंग दैट ही इज बीइंग अक्यूज्ड ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंस, मतलब उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा होगा लीडर ऑफ CM के ऊपर, इसलिए यहाँ पर उसका हिंदी है. हालांकि उनकी गिरफ्तारी अनुचित है यह देखते हुए कि उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री के खिलाफ केवल भाषण आधारित घटनाओं पर आरोप लगा है. जैसे बोला था इट इज प्रेडिक्टेबली, मतलब अनुमानतः प्रेडिक्टेबल एंड नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन, मतलब कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई कारण नहीं है. इन्वाइटेड चार्ज इन पॉलिटिकल वेंडेटा, मतलब प्रतिशोध, वेंडेटा मतलब प्रतिशोध, राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से. Even if one were to accept to face value the prosecution claim that his especially strong hatred against community, मतलब कि इसलिए उनको उसने क्या बोला है, भाषण क्या दिया, स्पीचेस मतलब भाषण, हेट्रेड अगेंस्ट कम्युनिटी मतलब नफरत फैलाना, समुदाय के खिलाफ नफरत फैला दी थी, ऐसा उन्होंने बोला है. गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये क्लेम किया है, प्रोसिक्यूशन क्लेम दैट मतलब दावा, अभियोजन पक्ष. He had referred alleged rampant conservative activities in the state, मतलब उनके ऊपर जो alleged मतलब क्या बोलते हैं कथित रूप से उनको थोपा गया है बड़े पैमाने से. He had referred to alleged rampant मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर गतिविधियों का उल्लेख किया गया था. मतलब कन्वर्सेशन में ऐसा बात उन्होंने बहुत पूरे राज्य में ऐसा बात किया है, उग्र बातें. एंड अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन अंडर 153 एंड 505 अरेस्ट नेसेसरी, और उन्होंने ये जो बातें की है उग्र बातें वो 153 और सेक्शन 505 की गिरफ्तारी के अंडर आती है, इसलिए उनको गिरफ्तारी आवश्यक थी. वाज हिज अरेस्ट नेसेसरी, उसकी गिरफ्तारी आवश्यक थी. दिस ऑफेंस अट्रैक्ट अ प्रिजन टर्म ऑफ ओनली 3 years एंड अरेस्ट द अमरेश कुमार रूलिंग 2015 सुप्रीम कोर्ट. इस जो इन्होंने धारा दिया है उसके अंदर सिर्फ 3 साल का ही प्रिजन हो सकता है, मतलब सजा हो सकता, कारावास हो 3 साल.
वो भी किसके फैसले पर, मतलब पिछले साल 2014 में एक ऐसे ही कुछ घटना हुआ था अरनेश कुमार के फैसले के तहत। देयर इज नो नीड टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर ऑफेंस दैट इनवाइट्स अ प्रिजन टर्म 7 years और लेस। मतलब ऐसा कोई किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसे जो ऑफेंस होता है जरूरत नहीं है जो 7 साल या उससे कम की जेल की अवधि आमंत्रित करता हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जरूरत नहीं है जो पॉलिटिकल रीजन में आते हैं या फिर जिनकी 7 साल से कम अवधि हो उसको गिरफ्तार किया जाए, ऐसा ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, 2-3 दिन पहले, तो उसी को लेकर यहाँ बोला गया है। फिर आगे चलते हैं। फर्दर इवन सेडिशन विच अलाउ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट आल्सो स्क्राइब्स एंड अल्टरनेटिव जेल टर्म फॉर 3 years। इसके अलावा यहाँ तक कि राजद्रोह को अधिकतम जीवन कारावास की अनुमति देता है। 3 साल की वैकल्पिक जेल अवधि भी निर्धारित करता है। जो सेडिटेशन होता है उसको बोलते हैं देशद्रोह, उसके ऊपर 3 साल या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। मिस्टर राजू हैज अलेज्ड इल ट्रीटमेंट वाइल सीआईडी कस्टडी। राजू सीआईडी मतलब मिस्टर राजू हैं, वो क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं सीआईडी के ऊपर कि उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, इल ट्रीटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू दैट एग्जामिन्ड एट द आर्मी हॉस्पिटल सिकंदराबाद इन नेबरिंग तेलंगाना। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, आप लोग मतलब क्या बोलते हैं उसकी जांच कराते हैं आर्मी हॉस्पिटल में, जो कि पड़ोसी तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। तो समझ गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों आसपास हैं और सिकंदराबाद में आर्मी हॉस्पिटल है। तो कोई पूछेगा कि किस हॉस्पिटल में, तो सिकंदराबाद। हिज बेल पिटिशन इज लाइकली टू बी टेकन अप लेटर दिस वीक। उनका जो बेल पिटिशन देगा तो 1 सप्ताह के संभावना के लिए रखा गया, उसको दिया नहीं गया। इट इज अनएडिफाइंग टू नोट दैट द सीआईडी हैज आल्सो नेम्ड इन द एफआईआर। सीआईडी ने एफआईआर भी कर दिया। 2 टेलीविजन चैनल टू व्हिच गिव इंटरव्यू। यह ध्यान देने योग्य कि सीआईडी ने प्राथमिक में 2 टेलीविजन चैनलों का भी नाम लिया है जिन्होंने उन्हें साक्षात्कार दिया था। मतलब जो सीआईडी एफआईआर दर्ज की है उसमें 2 टेलीविजन का भी नाम है जिसके ने उन्होंने इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार इसको बोलते हैं। While the legal process will take its course, it once again time for reflection on the need and relevance that offense sedition, a colonial provision to imprison people for politics threatening support of Indian independence to remain on statute book। जबकि कानूनी प्रक्रिया अपनी काम करेगी, while legal process will take its course, यह एक बार फिर से देशद्रोह की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर प्रतिक्रिया का समय है। इट इज़ वंस अगेन मतलब फिर से टाइम फॉर अ रिफ्लेक्शन प्रतिक्रिया ऑन द नीड एंड रेवलेंस ऑफ द ऑफेंस इन अ सेडिशन। मतलब आवश्यकता और प्रासंगिकता देशद्रोह के ऊपर। भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में राजनीतिक लेखन के लिए लोगों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औपनिवेशिक प्रावधान, मतलब वही कोलोनियल प्रोविजन है जो देशद्रोह के लिए लिखा जाता है। कानून की किताब पर बने रहें, जो भी होता है रिमेन इन द स्टैट्यूट बुक, जो बुक है उसके ऊपर ही जो फैसला हो किया जाए। द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट आर नोन फॉर द कैजुअल रिजॉर्ट टू प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन इज अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ अमॉन्ग सिविल सर्वेंट्स एवरीवेयर। राज्य सरकारों और विभिन्न पुलिस विभागों को इस धारा के तहत अभियोजन की और आकस्मिक सहारा के लिए जाना जाता है। यह हर जगह सिविल सेवकों के लिए बीच कानूनी समझ खराब प्रतिक्रिया है। यहाँ बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है और जो पुलिस अधिकारी हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठा करके किसी को भी देशद्रोह का मामला दे देते हैं जो कि सिविल सर्वेंट जो कि अच्छा काम करते हैं। तो ये बात बोला गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे खराब प्रतिक्रिया बनती है। इट इज़ नाउ फेयरली वेल नोन दैट सेक्शन इज अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज अ इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, टू देयर इज एक्चुअल इंसाइटमेंट टू वायलेंस। इंग्रेडिएंट्स आर इनवेरेबली एब्सेंट इन मोस्ट केसेस। ये बोला कि इट इज़ नॉट फेयरली, मतलब अच्छी तरह से जाना गया है कि सेक्शन इज अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज अ इमिनेंट थ्रेट, मतलब सच में एक उसमें खतरा होता, खतरा छुपा, इमिनेंट मतलब छुपा हुआ, आसन्न, उसमें रहता, भीतर होना, टू पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक ऑर्डर के लिए, और देयर इज एक्चुअल इंसाइटमेंट टू वायलेंस मतलब उनका सच में वास्तविक उत्तेजना के लिए, हिंसा के लिए देखा था नहीं, इस बात से होता, वैसे तो कुछ था नहीं। इंक्रीड इनवेरिएबल एब्सेंट द मोसेस, ऐसे तो जो ज़्यादातर मालूम है हमेशा, मतलब ऐसा तो उन्होंने कुछ किया ही, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला होगा कि लोगों को जागरूक कर सके। सीएम के यदि सीएम काम ना करे तो इंसान कुछ बोल ही सकता है। अब उसको लेकर के हमारे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे अभी देख लिए आंध्र प्रदेश में हो रहा है, मतलब कुछ बोलने जाओ सरकार के ऊपर, उस पर से पीएम ने भी बोल दिया कि पीएम के ऊपर जो बोलेगा उसको देशद्रोह का नाम, मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक को ख़त्म करने का एक चाल चला जा रहा है मेरे हिसाब से, जो ऐसा लॉ बन रहा है और पुलिस जो कर रही है और सरकारें भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन इट रिमेन्स वेगली एंड टू ब्रॉडली डिफाइंड द टर्म डिसअफेक्शन इट्स सेड टू इंक्लूड डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ एनिमिटी वारंटिंग टोटल रिकंसिडरेशन। इसके अलावा यह स्पष्ट है कि बहुत व्यापक रूप से परिभाषित शब्द अस्वीकृत और अविश्वास और शत्रुता। एनिमिटी मतलब शत्रुता होता है, फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी शत्रुता की भावना, डिसलॉयल्टी अविश्वास, डिसअफेक्शन अस्वीकृति, वारंटी एंड टोटल रिकंसिडरेशन कुल पुनर्विचार गारंटी देता है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड रिविजिट द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दिस सेक्शन। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संवैधानिक विषय से विचार करने का फैसला किया है। हाँ भाई करना चाहिए, क्योंकि जो तो बोल करके उसको भीतर घुसा देता है कि भाई ये देशद्रोह है, ऐसा तो नहीं चलता है। वाइल द जुडिशियल वर्डिक्ट विल बी वेलकम, न्यायिक फैसले का स्वागत किया जाएगा। इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव फॉर फ्री स्पीच। यदि सच में कुछ बोला जाए तो उसका, जैसे हम अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं कर रहे, उनकी पार्टी काम नहीं कर रही, तो उनको बोलना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा ना कि उनको जो मन वो करना पड़ेगा। उसके लिए सच में कुछ संवैधानिक बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ अमेंडमेंट आना चाहिए फिर से, कि जहाँ पर है दिया तो है 19ABC बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, लेकिन वो पूरा तरह से होता नहीं है। हम लोग का अभी भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है, इंडेक्स का रूल, उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। यदि केंद्र प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए, केंद्र का जो प्रावधान है कि ना नहीं बोलेंगे उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये था आज का हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए चलते हैं हार्ड मीनिंग के ऊपर, जो बहुत क्विक हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू 18 मई 2021 मंगलवार। सेडेशन राजद्रोह, देशद्रोह, इंसाइटमेंट, इंस्कर्शन देखिएगा अच्छा वर्ड है, रिबेलियन, ट्रेजन जो है अच्छा वर्ड है। फिर हुआ डिसअफेक्शन असंतोष, नाराजगी, नाखुशी। इन्वोकिंग प्रेरक, अभिमंत्रित करना, विनती करना, साइट ये अच्छा वर्ड है। जो मैं अच्छा वर्ड बोलता हूँ उन लोगों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वो सब वर्ड जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बार बार। ऑफेंस अपराध करना, दोष, क्राइम, मैल फंक्शन ये अच्छा वर्ड है। प्रोमिनेंट मुख्य, प्रसिद्ध, प्रधान, महत्वपूर्ण, प्रोमिनेंट ये एक अच्छा वर्ड है। फिर से एमिनेंट, प्रोमिनेंट, एमिनेंट दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। डिसेंटर्स असंतुष्ट रहता है किसी की बातों से। डिट्रैक्टर निंदक, आलोचना करने वाला, बोला था ना डिट्रैक्टर जो हैं उनके ऊपर यही है कि वो साउट मांगना, इच्छा करना, प्रार्थना करना। साउट किए थे क्या, उनके ऊपर मांग कर रहे थे कि उनके ऊपर कोर्ट केस किया जाए, प्रोसिक्यूशन, मुकदमा चलाया जाए। डायट्रेबल अभियोगात्मक भाषण, मतलब कुछ ऐसा बोले कि उनको थोड़ा खराब लगे, और क्या अभियोगात्मक किसी के ऊपर बोलना। वेंडिटा प्रतिशोध, बदला, पॉलिटिकल, अरे भाई किसी का पॉलिटिकल खराब होता है तो उसको बदला जाता है पुलिस से भी, जो सभी किया गया है मेरे ख्याल से देशद्रोह का उनके ऊपर लगा करके। रैम्पेंट आक्रामक, उग्र, अनियंत्रित, उनके ऊपर बोला कि उन्होंने रैम्पेंट वायलेंस वॉइस किया है, मतलब भाषण दिया है। कॉलोनियल उपनिवेश समझ, मतलब वहाँ के वो रहने वाले हैं, फिर भी वो तो समझते होंगे ना कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो उसके ऊपर उनका तो बोलने का हक होता है। एमिनेंट निकटस्थ, आसन्न, मतलब उसमें छिपा हुआ। इंसाइटमेंट वेगुली, इसे आप लोग देखिएगा। एबोलिश मतलब समाप्त कर दिया, और प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान, धारा, नियम, जिसमें चेंज होना चाहिए, जिसमें हम लोग को छूट मिल सके कि हाँ हम लोग कुछ बोल सके सरकार के खिलाफ। हम लोग ऐसे नहीं बोलते गाली गलौज नहीं, लेकिन कम से कम उनका तो आलोचना करना चाहिए। बिना आलोचना का तो सरकार समझ नहीं पाएगी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुविधाएं जो हैं हम लोग के ऊपर पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही हैं। तो चलिए ये था आज का हम लोग का हिंदी एडिटोरियल। कैसे लगा मेरा न्यू टाइप ऑफ पढ़ाने का? यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इस टाइप से पढ़ाएं, या फिर मैं शुरू से ही जो पहले पढ़ाता था, पढ़ाते वक्त ही उसका मीनिंग बताते रहता था, उसके बाद फिर सिनोनिम्स कर देता था। चलिए ख़त्म करता है।